Good evening, everyone. Okay, hello to everyone. As you all know that we are describing about what? Human reproduction, right? From last few classes, we started with the very fresh new chapter, that is reproduction in humans or higher animals. And up to this point, again, what we described so far in this chapter? What we described in this chapter so far, if you look at the things that we described, दो तीन चीज़ें हैं जो हमने मेनली बताई है या पढ़ी है, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मेल एंड फीमेल एसेसरी कैरेक्टर्स, राइट. देन व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड हाउ इट इज सीन इन ह्यूमंस. देन different set of events that mainly occur during the process of reproduction in humans, right, like right from the gametogenesis up to parturition, and what is in brief meaning of all those things. And recently we started with something that is structural details of male reproductive system. So with the proper diagrammatic representation, in last class we described the things up to which part of the male reproductive system, if you recall. See, I will name the components that we described yesterday structurally. First was scrotum. Next was testes. सिर्फ positionally या स्ट्रक्चरली हमने इसको डिस्क्राइब किया, फंक्शनली इसकी डिटेल्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी, जो कि हम पढ़ेंगे नो डाउट. ओके, इसके बाद कबर्नैकुलम और रेट टेस्टिस, वैस इफरेंस या वैसा इफरेंशिया भी कहा था हमने इसको. एपिडिडाइमिस और वैस डिफरेंस, मतलब वैसा डिफरेंशिया भी कहा था हमने इसको. इसकी सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स, स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमने कल पढ़ी थी. जैसे कि हमने स्क्रॉटम के बारे में क्या कहा, हमने स्क्रॉटम के बारे में पढ़ा कि इट इज़ अ थिन स्किनी पाउच विच इज़ हाईली पिगमेंटेड एंड प्राइमरीली फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्टिस एंड प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस less than that of body temperature, which is essential for sperm formation. To provide this required temperature is a function of scrotum. In which month of the gestation period normally the testes descend into scrotal sacs? 7th month of gestation. But before that 7th month, where the testes lie? In an abdomen. One disease was described, one condition was described yesterday, cryptorchidism. We will see it later too. टेस्टिस के बारे में क्या पढ़ा हमने, जल्दी जल्दी अगर हम भले रिकॉल करें तो. टेस्टिस हैज अ सेट ऑफ 3 कवरिंग्स टुगेदर कॉल्ड ट्यूनिका, एंड ऑर्डर वाइज आउटर टू इनर इज वैजाइनालिस, अल्बुजिनिया एंड वेसिक्युलोसा, राइट. Internally, each testis has about how many compartments in mature stage? Around 200 to 300. And each of those compartment is called as testicular lobule. And each of that testicular lobule then internally contains highly coiled tube-like structures. They are called seminiferous tubules. ये सब कल हो चुका है, that's why I am not writing anything. Seminiferous tubules from each testicular lobule unite to give rise to a network-like structure that is nothing but rate testes. And before that, the whole whole testes lie on a cushion-like pad from the lower side, or on the lower side it is called gubernaculum, which lies between lower end of the testes and scrotal sac, scrotum.
Rit testes gives rise to a single short tubule like structure which is nothing but vasa efferentia, which leads to a highly coiled structure that runs along the length of the testes, nothing but epididymis. And epididymis can be differentiated into three parts: the uppermost caput epididymis, the middle one corpus epididymis, and the lowermost part of the epididymis is called as cauda epididymis. Three C's: caput, corpus and cauda epididymis are respectively upper, middle and lower portions of epididymis. Right? The epididymis, particularly cauda epididymis, then gives rise to a long tubule like structure which is called vasa differentia. Is it okay? Now the things we should learn today will start with vasa differentia. तो देखो, say this is vasa differentia coming from testes of this side, and this is vasa differentia coming from testes of this side. As you know, there are two testes, और दोनों ही टेस्टिस में रिट टेस्टिस है, दोनों ही टेस्टिस में वैसा इफ्रेंशिया है, दोनों ही टेस्टिस में एपिडिडाइमिस है. तो दोनों ही टेस्टिस के एपिडिडाइमिस से कौन निकलेगा? अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज वैसा डिफरेंस ऑन दैट साइड, एंड दिस इज वैसा difference of this side. Now that side and this side means left and right. कौन सी left, कौन सी right, it's upon you. Is it okay? Now what after it arises from the epididymis on both sides? So see, it runs upwards. Upwards means in the abdomen, in the lower abdomen, where lies एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या है ये? कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर. क्या ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होगी? नहीं. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन ओपन होता है? ureters, that is coming from kidneys, left and right. तो यूरेटर का अपना अलग हिसाब है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ये कौन सी सिस्टम है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूरेटर सिर्फ इसलिए निकाला कि यूरेटर के ऊपर से दीज वैसा डिफरेंस, नाउ आई एम ड्रॉइंग इट इन रेड सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. These vasa difference, is it okay, from both the sides descends over urinary bladder. Urinary bladder के ऊपर से पास होती है, ये अंदर नहीं जाती. Okay, and on the both sides of urinary bladder there lies the first pair of glands.
ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझो इसको प्रॉपरली क्या हो रहा है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो ग्लैंड्स है इन्हें हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। देखो तुमको मेल एसेसरी ग्लैंड्स में लिखवाया था जब हमने सारे कंपोनेंट्स एनलिस्ट किए थे। तो स्ट्रक्चरली हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर इन रिलेशन विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? 3 ग्लैंड्स, 2 आर पेयर्ड, 1 इज सिंगल, करेक्ट? सो दैट 3 पेयर्स में पहली पेयर कौन, 3 पेयर्स में नहीं 3 सेट्स में पहला सेट कौन सा था? सेमाइनल वेसिकल। तो देखो यूरेटर के दोनों तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और दोनों ही ग्लैंड्स में से ये क्या निकलता है? डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो डक्ट होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट वाली ग्लैंड होती है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, तो ये क्या है? डक्ट। डक्ट किसका? सेमाइनल वेसिकल नाम की ग्लैंड का। ये भी क्या है? डक्ट। किसका? इधर वाली सेमाइनल वेसिकल का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन है? वैसा डिफरेंस, ये रेड वाला पोर्शन कौन है? दोनों तरफ से आने वाली वैसा डिफरेंस। वैसा डिफरेंस और डक्ट अराइजिंग फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल फ्यूज होते हैं, सी दिस, दैट्स व्हाई ये क्रिटिकल है। द डक्ट, नाउ हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग जस्ट लिसन केयरफुली एंड व्हाट आई एम शोइंग जस्ट सी केयरफुली। ओके, 2 थिंग्स। पहले सुनो, द यूनिफिकेशन और से the vasa differentia arising from epididymis on each side runs over ureter, urinary bladder, and unites with duct arising from seminal vesicle to form a common duct. Getting the thing? Which 2 things or which 2 ducts or which 2 vessels unite to form a common duct? Vasa differentia and duct from each seminal vesicle unite to form a common passage. This is a common passage. अब ये वाला जो है इतना हिस्सा, ये क्या है? कॉमन पासेज है। मतलब इस पासेज में से क्या आएगा? जो वैसा डिफरेंशिया के थ्रू आ रहा है वो भी होगा, और जो सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है वो भी होगा। तो इस कॉमन पासेज को दोनों तरफ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल है, क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो क्वेश्चन कम्स लाइक, which 2 components of the male reproductive system unites to form ejaculatory duct? Is it okay? कौन से 2 components किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से 2 कंपोनेंट्स यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, ये सवाल है। तो कौन से 2 कंपोनेंट्स बोलोगे? वैसा डिफरेंशिया एंड सेमाइनल वेसिकल, या डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन पासेज दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ फिर से हम ब्लैक पे आते हैं। ब्लैक कौन है यहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है? यूरेथ्रा, राइट? तो ये डक्ट किधर ओपन होता है? द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इन यूरेथ्रा। इज इट ओके? समझ में आई ना बात? अब यूरेथ्रा के इधर क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इधर स्पिंक्चर होता है जो इस पासेज को बंद और शुरू करता है। तो जब सीमेन पास होता है तब यूरिन पास नहीं होती, और जब यूरिन पास होती है तब
सीमेन पास नहीं होता। इसकी नेचुरल अरेंजमेंट है यहाँ पे, उसको निकाल के हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं तुमको दोनों ही स्पिंक्चर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल स्मूथ मसल वाला और एक्सटर्नल स्केलेटल मसल्स वाला, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल वाला, करेक्ट। तो इसके नीचे हियर देयर इज अनदर ग्लैंड which is unpaired. Which gland is it? एक ही अनपेयर्ड ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। Prostate gland. Is it okay? The prostate gland has it urethra passing through it. Urethra is a long structure in males. It arises from urinary bladder and passes up to outside. तो ये वाला जो यूरेथ्रा है, इसमें किसकी डक्ट्स ओपन होती है? अरे प्रोस्टेट भी ग्लैंड है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसके भी खुद के डक्ट्स हैं, तो इनको क्या नाम देंगे? डक्ट्स फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन इन डक्ट्स के थ्रू ऐड करेगी, सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू ऐड करेगा, टेस्टिस से जो आ रहा है वो वैसा डिफरेंशिया लेकर आएगी। तो ऐसे सब कंपोनेंट्स जुड़ते जाएंगे और सीमेन बनता जाएगा। समझ में आई ना बात? हम फिर वही बात दोहरा रहा हूं मैं, हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ है ना। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे हियर स्टार्ट्स अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसे हम पेनिस कहते हैं, राइट। एंड पेनिस के थ्रू भी यूरेथ्रा पास होता है। ओके, और पेनिस के आउटसाइड यूरेथ्रा ओपन होता है। इस पोर को हम ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल एपर्चर, क्योंकि इस एपर्चर के थ्रू पेनिस के बाहर यूरिन और सीमेन दोनों बाहर आते हैं। इसीलिए इस पासेज को, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है एक्चुअली बॉडी के बाहर, क्या कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल एपर्चर। और ये यहां से लेकर ये पूरा क्या है? यूरेथ्रा। लेकिन हमने यूरेथ्रा को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर के यूरेथ्रा को कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, पेनिस के अंदर के यूरेथ्रा को कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। और प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में जो यूरेथ्रा का हिस्सा प्रेजेंट है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाला जो हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बची हुई ग्लैंड ओपन होती है। कौन सी? पी शेप्ड, वटाने जितनी, मटर के दाने जितनी। कौन सी ग्लैंड? दोनों नाम, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो अभी ये मत सोचो बिल्कुल भी कि सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, लोगों को अक्ल ही नहीं है।
सेमाइनल वेसिकल क्या काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, या काउपर्स ग्लैंड क्या काम करती है. डोंट थिंक अबाउट दिस, जस्ट हैव वन थिंग इन माइंड कि पोजिशनली कौन सी चीज किधर है. ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जो हमने कल नहीं पढ़ा, और कल जो पढ़ा और ये जो है, ये दोनों मिला के पूरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हम देखते हैं किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. इज इट ओके? इतनी बात समझ में आई? नाउ वेट फॉर अ मिनट, समवन इज ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So where we were describing about male reproductive system. So let's have the proper discussion one more time, because I want to make it sure कि you have an idea about structural details of the male reproductive system. Again I am saying I am not talking anything about functional details of any particular part. I am just concerned right now with structural details, one step at a time. Okay, if I ask you after studying all this, okay, where is the structural location or position of scrotum? So you should say scrotum lies outside the body, below abdominal region, right? When does the testes descend into scrotum? Usually in 7th month of gestation, right? What is the structural benefit of scrotum? So it provides protection. And what is functional benefit of scrotum? It provides the temperature 2 to 3 degrees Celsius less than that of normal body temperature for the purpose of spermatogenesis. Without this temperature availability, sperms will not form, right? Then if we move further, inside scrotum you have testes 2, 1 in each sac of the scrotum, means part of the scrotum. 3 coverings are present on each testis, outer to inner, vaginalis, albugenia, vesiculosa. Each testis has certain number of compartments, usually 200 to 300. Each compartment contains a single thing, that is seminiferous tubules. Seminiferous tubules of each compartment, called testicular lobule, unite to give rise to a network of tubules called reed testes. The reed testes then gives rise to a single tubule, vasa efferentia. The single tubule called vasa efferentia then leads to a highly coiled structure that runs along the length of the testes. Epididymis, respectively upper, caput epididymis, middle, corpus epididymis, and lowermost cauda epididymis. The epididymis then leads to a long single tube like structure from each side. Each side means each testis. So this is what you see. This is coming from each testis below and turning upwards and then downwards. Downwards over the surface of urinary bladder in abdomen. And ultimately this downward moving structure, that is vasa deferens, which is long tube arising from somewhere here and going like this, unites with the duct of first paired gland of the male reproductive system, that is duct of seminal vesicle. Then the common duct here, the common duct that is formed by union of seminal vesicles duct and vasa deferens is called as ejaculatory duct. Here is an important question. What is ejaculatory duct? You should know. It's a common duct formed due to unification of seminal vesicles duct and vasa deferens, not efferens. Okay. The ejaculatory duct then opens into a part of urethra that is coming from urinary bladder.
The same urethra then goes or moves into another gland which is unpaired, that is prostate gland. So what I was saying was, the part of urethra that lies inside prostate gland is particularly called prostatic urethra. In this part of urethra, the ducts arising from prostate glands open. Now why they open? Because they will carry everything that is secreted by hello 10 minutes. Everything that is secreted from prostate gland will be added into this part of urethra, right? Everything that is secreted by seminal vesicle and vasa deferens will be added to this part of urethra, right? The urethra then comes out of prostate gland and enters into penis. The part of urethra that lies inside penis is particularly called penile urethra. But penis is not a gland. Penis is not a gland. Penis is an organ that functions for copulation or sexual intercourse. So penis do not secrete anything, but there is a small part of urethra that lies between prostate gland and penis. You see here, right? This part of urethra which lies between prostate gland and penis, means after exit from prostate gland and before entry into penis, there is a small part of urethra. It is particularly called as, बताया था बट यहाँ लिखा नहीं है, membranous urethra. ओके, अब ये membranous urethra वो हिस्सा है जहां पे थर्ड पेयर ऑफ ग्लैंड ओपन होती है. तो पेयर मतलब तीसरी वाली ग्लैंड, पहली सेमाइनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी काउपर्स ग्लैंड जो सबसे छोटी और सबसे आखिर में है. ठीक, अब मैंने तुमको क्या नहीं सोचने के लिए बोला है फिलहाल कि व्हाट सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट्स, व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड. डोंट थिंक अबाउट दिस, वी विल लर्न इट लेटर इन फंक्शंस ऑफ दीज ग्लैंड्स. Okay, I want to just convey what here at least, that where these glands are located. So you see, here is the first pair of gland beneath urinary bladder. Second pair of gland lies below it, not pair, single prostate gland. And then third, which is again a pair, lies somewhere in the pelvic region. Okay, above penis, internally or inside the body, and opens themselves through their own ducts. In which part of the urethra? Membranous urethra. Is it okay? अब यूरेथ्रा के इतने हिस्सों में सबसे लंबा वाला हिस्सा है ये पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस के अंदर रन होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा. अब इवन पेनिस को भी एज अ स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनली व्हाट पेनिस हैज and which are the different components of penis along with its function. We will learn what is semen and what exactly is present in a semen. That means इन सब के secretion को individually पढ़ने का मतलब है semen को पढ़ना, क्योंकि semen इन सब के secretion से मिलके बनता है. अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो semen contains sperm जो testis से आएगा, epididymis ने secrete किया हुआ secretion, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल ने सिक्रीट किया हुआ सिक्रीशन, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ने सिक्रीट किया हुआ सिक्रीशन और काउपर्स ग्लैंड ने सिक्रीट किया हुआ सिक्रेशन. ये इतनी 4-5 चीजों का सिक्रीशन मिलके अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कौन बनता है? सीमेन, जो फाइनली ये वाला ऑर्गन जिसे हम मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, ये कौन सी प्रोसेस के दौरान? सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन की प्रोसेस के दौरान वो सीमेन कहाँ डिपॉजिट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो हमने नहीं पढ़ी बट बता दूं, पर्टिकुलरली वजाइना में. वजाइना इज दैट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द पेनिस वर्क्स फॉर डिपॉजिटिंग सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको 1 by 1 पढ़नी होंगी. और स्ट्रक्चर अगर हमको नहीं पता
तो हम फंक्शन नहीं पढ़ सकते जो हमेशा की हमारी स्टोरी है। दैट्स वाई वी ऑलवेज फोकस फर्स्ट ऑन structural details. So I think you are now clear with structural details of what? Male reproductive system. ये पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जो कल वाला डायग्राम है, टेस्टिस वाला, इधर एक टेस्टिस होगी, इधर एक टेस्टिस होगी, राइट? और ये पेनिस, तो वो बनती है एक्सटर्नली दिखने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो टेस्टिस, स्क्रॉटम और पेनिस। और जो नहीं दिखते वो कंपोनेंट्स ये सब है इंटरनली लोकेटेड। गेटिंग द थिंग? अब हमको आगे क्या पढ़ना है? देखो, स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने डिस्क्राइब कर दिया, टेस्टिस का हमने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया। अगर मैं तुमको पूछूं कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, करेक्ट। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब टेस्टिस प्राइमरीली क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करती है, इसीलिए हम टेस्टिस को क्या कहते हैं? मेल गोनैड्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स, बराबर ना? अब टेस्टिस में कल भी बताया था ये कि टेस्टिस में एग्जैक्टली वो कौन सी जगह है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी? लगभग 750-800, अगर तुम हिसाब लगा लो। 250 से 300 कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट से एवरेज में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो मल्टीप्लाई गुणाकार वगैरह करो तो लगभग 700-800 700 to 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइज इन सिंगल टेस्टिस। और उसमें से हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक ही कॉमन प्रोसेस होती है, प्यूबर्टी, मतलब जिसको हम बोलते हैं यंग होने से लेकर बूढ़े होने तक। मतलब जब तक मेल स्पर्म बनाने के केपेबल होता है तब तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यही काम चलता है, स्पर्म बनाने का, सीमेन बनाने का नहीं, स्पर्म्स बनाने का। कौन सी प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़नी है वो क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इफ वी नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, then only we can understand the process of spermatogenesis which we need to describe later. Correct? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ के हो गया। हम आगे आएंगे, रिट टेस्टिस में कुछ पढ़ने लायक नहीं, वैसा इफ्रंस में नहीं, इपिडिडाइमिस में भी नहीं, वैसा डिफरेंस में भी नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट मैं अभी बता चुका। फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेमाइनल वेसिकल्स क्या सिक्रीट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, काउपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कहाँ लोकेटेड है ये तो हमने देख लिया, क्या सिक्रीट करती है ये उसका फंक्शन हुआ, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। पेनिस इंटरनली कैसा होता है ये हमको पढ़ना पड़ेगा। पेनिस क्या करता है ये सबको पता है, पेनिस इंटरनली कैसा है ये हमको पढ़ना होगा। इज इट ओके? सीमेन कंपोनेंट वाइज कैसा है और वो क्या करता है सबको पता है। कंपोनेंट्स कौन से हैं ये वी नीड टू डिस्क्राइब। इज इट ओके? एंड सिमिलरली आप सबको पता है कि पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, हार्मोनली कंट्रोल्ड है, जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। सेक्स हार्मोन्स अलग, गोनाडोट्रोपिन्स अलग। सेक्स हार्मोन्स मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सेक्स हार्मोन्स है। गोनाडोट्रोपिन्स कौन है? LH, FSH, ICSH याद आ रहे होंगे, ये गोनाडोट्रोपिन्स है। तो इनका कंट्रोल कैसे है? इन रेफरेंस टू, स्ट्रिक्टली इन रेफरेंस टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, यहाँ पे मेल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा, राइट? और डिसऑर्डर्स पढ़ने होंगे। दिस विल बी आवर नेक्स्ट थिंग टू स्टडी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ के ख़त्म किया?
structural details. Again, don't get confused, don't panic. We have just focused on structural details of male reproductive system. Okay, I am stopping here. Today we are like concluding early because I have some work. So we will meet next time with the discussion of what? Details of seminiferous tubules internally, along with other things that we just said. Okay, thank you.